friends, I am Sumit Rawat. I am Vishwan Singh, working as a service engineer At Semco Infratech Private Limited. Today we both are going to present one new machine. The rating of machine is 48 volt, 3 ampere charging, 5 ampere discharging, 192 channels. so basically this machine, as you can see, we can have a hardware part of this machine, and you can see 8 PCBs in one row of this machine, and consecutively we have 6 rows. So total we have 192 channel. I will explain you how we are going to have 192 channel in this machine. So basically, as you can see, this is first PCB. This PCB comprises one port for charging, one port for discharging. So this both port as an addition will make a one channel. So in one PCB, as you can see, there are 4 channel, and we have 8 channel in one row. So total 32 channel in one row. Collectively, if we see, we have 6 rows, so 32 into 6. So total we have 192 channel. As you can see, if we take an example of one channel only, so the upper part of that port, this is for charging, one is positive and one is negative, and this one is for discharging, one is positive and one is negative. Now, how to connect these connectors to the battery, Vishwendra will tell. In this battery, we have this side is positive and this side is negative. So we have connected charging plus connected this one, and discharging port plus port this, and negative side is this side. So we have connected battery according to the positive and negative. Machine is concerned, as you can see, there are 3 indicators. One is for discharge, one is for charge, and one is the system. When the system get on, so this light will glow. And as far as that voltage is concerned, so we have a voltage Indicator. indicator here. So as you can see, right now the voltage is between 300 volt to 450 volt, and rest MCBs are there for operating this machine. And when we will charge the battery pack, so this light will glow, and when we'll discharge the battery pack, so this light will glow. Now with this machine only, we have one more cabinet. In this cabinet, as you can see, a pre-installed PC is there, a pre-installed CPU is there, keyboard and mouse, each and everything is there with this machine only. Again with this machine, you can see there's a voltage indicator. Again, 2 indicators are there for the system, and this is also for the system only. So now with this machine, Vishwendra is going to operate this machine. Over to Vishwendra. This is the software of this machine which operate. ये हमारा सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम इस मशीन को प्रोग्राम देंगे जिससे कि ये रन हो करे. तो इसको हम ऑन करते हैं. दोबारा बोलना है. इसमें हमारा यूजर नेम है एडमिन, पासवर्ड एडमिन. ये हमारा इंटरफेस खुल के आ जाएगा. यहाँ हमारा पैरामीटर्स है. यहाँ पे जाके हमें प्रोग्राम सेट बनाना होता है जिससे कि हम बैटरी के बेसिस पे बनाते हैं. यहाँ पे हमारा प्रोग्राम नाम देना है. जैसे मैंने दिया हुआ है 5 स्ट्रिंग 2AH 21 वोल्ट CD चार्ज और डिस्चार्ज 20 मिनट के लिए. टोटल टाइम दिया मैंने 20 मिनट और 10 सेकंड के डेटा पे मुझे हर 10 सेकंड बाद डेटा चाहिए इसका. ये हमारा चार्जिंग स्टेप. इसमें मैंने टाइम दिया 10 मिनट का, जिसके लिए मुझे चार्जिंग चलाना है 10 मिनट. उसमें से 500 सेकंड हमारी चार्जिंग चलेगी, 100 सेकंड्स का हमारा रेस्ट रहेगा. तो ये हमारा लेयर है, इसमें पहली पे जाएंगे. ये हमारा चार्जिंग का है. इसमें हमने चार्जिंग पैरामीटर सेट किए हुए हैं. ये है हमारा 2 एम्पियर हमने लोड दिया है इस पे चार्जिंग करंट. LED करंट दिया हमने 22. V ऑफ दिया है, चार्जिंग कट ऑफ 21.5 पे. ये हमारा करंट दिया है, ओवर करंट 2.1 होते ही ये कट कर देगा. ये हमारा बैटरी का ओवर वोल्टेज है और ये हमारा बैटरी का अंडर वोल्टेज है. ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया. ये हमारा डिस्चार्जिंग, ऐसे ही हमने डिस्चार्जिंग का दिया. यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने बैट D, यानी कि हम बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे हैं. यहाँ पे हमें इनेबल लोड मॉड्यूल, ये भी फिर लोड दिया हमने 2 एम्पियर का. 2 एम्पियर से हमको डिस्चार्ज करना है. ये कट ऑफ वोल्टेज दे दिया 14 वोल्ट का. अंडर वोल्टेज 13.5, ओवर वोल्टेज 22 एंड ओवर करंट 2.1, सेम एज इट इज. ये हमारा प्रोग्राम बन चुका है. इसको सेव कर दिया है हमने, इस नाम से सेव हो गया. अब हमें इस बैटरी को चार्ज डिस्चार्ज करने के लिए यहाँ इस जगह पे जाके प्रोग्राम को लोड करना होता है. जो भी हमने अपने जिस नाम से बनाया उसको आप सिलेक्ट करिए, ओपन करिए और आपका प्रोग्राम लोड हो गया. यहाँ से आप स्टार्ट करिए. यस, तो ये हमारी मशीन स्टार्ट हो जाएगी. ये हमारी यहाँ पे परसेंटेज में भी दिखा रहा है
कि कितना टाइम चल चुका है, और टाइम भी दिखाएगा आपका रनिंग टाइम कितना चल चुका है, और ये रिमेनिंग टाइम है। ये हमारा स्टार्टिंग टाइम है कि हमने किस टाइम पे स्टार्ट किया है और कब ख़त्म हो जाएगा हमारा प्रोग्राम, ये भी इसने एस्टिमेट करके बता दिया है। ये हमारा रनिंग टाइम चल रहा है कि इतना टाइम चल चुका है और कितना टाइम बचा है, वो यहाँ दिखाएगा। जैसे ये परसेंटेज जो शो कर रही है कि इतना % हमारा प्रोग्राम हो चुका है, वो हमारा ग्राफ के थ्रू भी शो करता है। नीचे जो रेड एरिया है वो हमारा भी बचा हुआ है, और जो ग्रीन दिखा रहा है वो अभी हमारा हो चुका है, प्रोग्राम इतना चल चुका है। ये 48 जो है, जो 48 यहाँ पे दिखा रहा है 48 वी इन, ये हमारा चार्जिंग के लिए है, और 300 हमारा डिस्चार्जिंग को शो करने के लिए है। जैसा कि आप ग्राफ में देख सकते हैं, जब हमारा चार्जिंग स्टेप चलेगा तो वो 48 पे स्ट्रेट कॉन्स्टेंट लाइन दिखाएगा, और जब हमारा डिस्चार्जिंग में जाएगा तो वो 300 पे दिखाएगा। ये हमारी जो ग्रीन लाइट शो कर रही है कि इस पे हमारा बैटरी कनेक्टेड है, ये हमारा शो करेगा कि हमारी बैटरी कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये हमारा शो कर रहा है कि कितना इस टाइम पे करंट ले रहा है, 2 एम्पियर 0.011। इस टाइम पे हमारी कैपेसिटी इतनी हो चुकी है, इतना वोल्ट हो चुका है बैटरी का। ये हमारा इस पे शो करेगा इसका वैल्यू। अगर अलग कलर शो करते हैं तो जैसे अंडर वोल्टेज के लिए रेड है, अंडर कैपेसिटी के लिए येलो है, ओवर वोल्टेज के लिए ब्लू है, ऐसे ही सारे कलर अपने अपने अलग अलग शो करता है। इसी के अब हम हार्डवेयर प्रोसेस पर चलते हैं कि बैटरी हमारी जब चार्जिंग में है तो आप देख सकते हैं कि चार्जिंग लाइट ग्लो कर रही है। जब डिस्चार्जिंग के टाइम पे डिस्चार्जिंग लाइट ग्लो करेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे मैंने उस कैबिनेट से मैंने जब प्रोग्राम दिया तो ये हमारी सारी लाइटें ग्लो करने लगी हैं पीसीबीज पे, और जो जिस पे हमारी बैटरी लगी हुई है उसकी लाइट ब्लिंक कर रही है बार बार देख सकते हैं। और जो आपको मेरे कलीग ने बताया जो लाइट ग्लो का चार्जिंग पे, तो हम देख सकते हैं कि जब हमारी बैटरी चार्जिंग में है तो चार्जिंग लाइट ग्लो कर रही है, और जब डिस्चार्जिंग करेगी तो डिस्चार्जिंग लाइट ग्लो करेगी। तो ये तो हमारा हो गया मशीन का पार्ट। अब थोड़ा हम क्वेश्चन आंसर पूछ लेते हैं ताकि हमारे लिए बहुत आसान रहे कि ये मशीन तो चल रही है, पर जैसे विश्वेंद्र, अगर हम देखा जाए इस मशीन को हम चैनल को पैरेलल कर सकते हैं? बिल्कुल सर, पैरेलल कर सकते हैं। उसके लिए आपको जैसे कि ये 2 कनेक्टर हैं, हाँ जी, इनको पैरेलल करने के लिए हमें सेम कनेक्टर लेने होंगे। हाँ, आप 2 तरीके से इसको पैरेलल कर सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास सुविधा है कि क्लिप अगर एक साथ सारी कनेक्टर की लग सकती हैं तो आप क्लिप के साथ कर सकते हैं पैरेलल। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दोनों कनेक्टरों के दोनों वायरों को एक साथ एक ही क्लिप में लगा जोड़ सकते हैं, शॉर्ट करके लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास इस तरीके के कनेक्टर है नहीं, अलग अलग हैं, थोड़ा दिक्कत आती है पैरेलल करेंगे, तो इसलिए हमने अलग इसको पैरेलल करने के लिए दूसरी तरीके के कनेक्टर बनाए हुए हैं, जिससे इसको कनेक्ट पैरेलल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। देखिए सर, मैं इसको पैरेलल करके बता देता हूँ कैसे करते हैं। इन दोनों चैनलों को मुझे पैरेलल करना है, तो जो भी इसके पॉजिटिव नेगेटिव है सेम इस चैनल के जो लगा रखे हैं मैंने उसी तरीके से इसको लगा दूंगा, तो ये हमारी बैटरी पैरेलल में हो जाएगी। ये दोनों चैनल हमारे पैरेलल हो जाएंगे। मतलब फिर चार्जिंग से जो जैसे पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है वो जो हमने पहले उसमें लगा रखे हैं वो हम उससे सेम उसी तरीके से लगने हैं। फिर हमारी जो रेटिंग है वो बढ़ जाएगी। चार्जिंग के टाइम पे हमारे दोनों चैनलों की मिला के 6 एम्पियर हो जाएगा चार्जिंग करंट, और डिस्चार्जिंग करंट जो है हमारा 5 एम्पियर से बढ़ के 10 एम्पियर हो जाएगा। तो ये हमारे रेटिंग जो है जब भी हम पैरेलल करते जाएंगे तो वो बढ़ती चली जाएगी रेटिंग। ऐसे करके हम 8 चैनल तक हम इसको पैरेलल कर सकते हैं। ठीक, 2, 4, 6, 8 ऐसे, तो मतलब इवन में कर सकते हैं पैरेलल में 4 चैनल कर सकते हैं। अगर मैं पैरेलल कर दूं 3 4 12 मतलब 12 एम्पियर तक मैं चार्जिंग और 20 एम्पियर तक डिस्चार्जिंग कर सकता हूँ आराम से। ठीक है, और बाकी अगर मान लो कभी फ्लक्चुएशन आया और बंद हो गई एमसीबी, तो हमारा प्रोग्राम वहीं से कंटिन्यू हो सकता है? इसकी कंटिन्यू हमारा अगर हम पैरेलल कर रहे हैं कुछ टाइम पे कंटिन्यू नहीं होता है, ठीक है, लेकिन अगर 1 by 1 चल रहा है तो हमारा प्रोग्राम वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा। मतलब अगर पावर चली जाती है, पावर चली जाए मान लो, हाँ, तो ये कंटिन्यू हो जाएगा, हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू हो जाएगा, हमारा कोई डेटा लॉस नहीं होगा। नहीं। So this is all about this machine. Thanks for watching our video. Thank you. And please don't forget to like, subscribe and follow.